नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो मैंने पहले बताया नहीं था कि क्या लेके आऊँगा, बट दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी रिलेटेड टू माई लास्ट वीडियो. In my last video, I asked you that I need your help for adjustments playlist, means option trade adjustment playlist, and no one has replied so far. So I am assuming that nobody knows till now that how to adjust each and every strategy. Okay, or they don't have any basic fundamentals through which they can adjust the positions. So well, I didn't end that playlist there. Actually, I tried to research from my end as well. And when I was researching, I have come up with some theories like, there are something which is called Greeks, so which affects directly the option trade. If you are taking single trade also, that will also affect. If you are taking multiple trades or you are making some strategy, that will also have some different option Greeks. So that will affect the trades. So if we can control that Greeks, then definitely we will be able to control our profit and losses. So based on that, I'm thinking that if I learn that, that is definitely going to help you and me as well. So in order to learn that, I had gone through so many websites and so many videos, and when I was researching that, there was not a particular answer which could satisfy me. Means like there were some videos available, they were giving quite a good knowledge, but still I was not satisfied. So what I did, I just went there and I took out all the useful knowledge as per my opinion, or you can say according to me, and then I combined it and I am going to put it out for you, so that if you complete this option Greeks playlist, then definitely you will not have any doubt in your mind after that. Okay, and you will be able to use that option Greeks for your advantage. Option Greeks are very much important, because when I was learning about that, then I come to know that what mistakes I am making when I am making positions in option chain. I'm daily making some trades, some strategy or something like that, but I was not at all looking for option Greeks, like what option Greeks value is. So how this was affecting my trade? There are some important parameters. So before making trade itself, at least we can see, okay, where my trade is going to go or how much risk I'm about to take. So if you know these parameters, then it is very easy for you to take the trades. So today we'll be limiting this video to delta, and then we'll go again and again, and then we'll be discussing 5 Greeks. So you will be asking me, what is this first, the Greeks? So if I say you Greeks, then what do you imagine? You imagine about Roman Empire, because there Greeks used to happen, and there used to be some Greek scientist and Greeks, god of Egypt, you can say. You have seen some pyramids. So you all have seen the pyramids in videos or somewhere else. So you already know that, okay, this is the pyramids, these people are Greeks and they have made the pyramids. So why pyramids are in controversy? Because whoever laid down that structure, they must be so much powerful, because that stone or whatever things they have used there, it was so huge that it was almost impossible to lift. So if someone has lifted, then definitely it was not a human being, or else that technology was way advanced. So that's how you have heard some name of Egyptian god, or you all have seen this Egyptian god movie or something like that. So Greeks of god, that also you have heard the term, I guess. So Greeks of god means what? That particular god in the history, if you go for the history, then on that particular history, it is written that that god has affected, or that god has influenced that particular area. Okay, Roman Empire, basically the Greeks people, this gods were able to influence that particular area people, or you can say whatever culture or whatever was there. Okay, so if you can take the same analogy, so in options, how you can take the same analogy? Greeks affect the option price. So Greeks has some force which influence option price. So if we know what forces is against us, what forces is working for us, then definitely we can trade as per our wish. Suppose volatility is high and you are buying options out of the money, then it is of not of much sense, because it is already high priced. So how did you know? Because you have seen the volatility. If you have seen the volatility, then you also know that you have seen the delta, because delta will also be affected by the volatility. Then you will be knowing, okay,
Now options are overpriced, so I shouldn't be buying out of the money, I should be selling instead. So that's how you will be knowing. So these are the some use of this Greeks, okay, you can say. So first let me talk about what types of Greeks available out there. So if you see, then there are 5 Greeks. So if you see, number first one is delta, the second one is vega, and third one is gamma, fourth one is theta, and fifth one is reobol. Okay, and there are other parameters also which directly affect this Greeks. So what are those parameters? Well, you have seen the India VIX and you have also seen the implied volatility. So you heard these names. So this also affects these Greeks. So now you know what are the Greeks and what are the names of types of Greeks. So you know basically 5 types of Greeks are there. So we'll be discussing each of this in detail. So today we'll be limiting our video to the delta alone, so that you can digest the knowledge and you can take this knowledge along with you. So that if I'll fill you up with the knowledge for almost half an hour, more than half an hour, then you will not be taking anything. Everything will be going above your head. So first I'll try to give you some analogy also, so that you can understand it very much better. First we'll talk about delta. So if you see the delta, here you can see so many things are written. Okay, so the first one is I have written is delta means hedge ratio. Hedge ratio and delta. So you can say that synonyms of delta, or you can say another name of the delta is hedge ratio. So if someone say I am seeing the hedge ratio, it means he is seeing the delta. Now let's first go for the definition, then we'll go further deeper into it and we'll try to understand it very much clearly. The first one is it shows the sensitivity of the price of an option to shifts the price of underlying. See, if underlying asset price moves to certain points, then how much your premium is gonna move, that will be decided by delta. Okay, so now you know what is delta. Well, if underlying, how much underlying asset price shift will affect the premium, you can say. So that will be your delta. So the definition is enough. Means how is it is going to use this? Means we already know that if option or asset price going to be changed, then definitely premium is going to be changed. Then how it is useful? Let me tell you. First, let's see this formula. It is like you can see dv by ds. Actually क्या रहता है, ऊपर वाला आप चेंज लेंगे ना v2 माइनस v1, v1 पहली वैल्यू, v2 सेकेंड वैल्यू और s2 माइनस s1, तो उसको आप dv by dt बोल सकते हैं एक रेफरेंस में. मतलब चेंज ऊपर भी नीचे भी चेंज, ठीक है, तो उसको आप dv by dt बोल सकते हैं. इन जनरल बोल रहा हूँ मैं, बहुत स्मॉल मतलब छोटा सा लैंग्वेज में बोला जाए तो. अभी इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बनाया जाए तो हमको v का जो मान है ये ऊपर वाला, उसको s के टर्म में लाना पड़ेगा, फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा. तो क्या इक्वेशन इंपॉर्टेंट है? नहीं, बट शेयर करना ज़रूरी था. हाँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैथमेटिक्स से ज़्यादा प्यार है और वो शायद आगे जाके इसके ऊपर कुछ सोचे, तो डेफिनेटली मैंने आपके साथ इक्वेशन शेयर कर दिए. यहाँ पर आपको कहीं पर वॉलेटिलिटी नहीं दिख रही, कुछ भी नहीं दिख रही है. वेल, आप बोलें कभी मैं आपको कुछ बोल दूंगा कि डेल्टा का प्राइस वॉलेटिलिटी से अफेक्ट होता है, अभी मैंने जैसे पहले ही बोल दिया, देन यू वुड बी क्वेश्चनिंग मी दैट वेयर इज दैट इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी और वॉलेटिलिटी. भैया रुको, दिस कैपिटल वी, इट इज़ द ऑप्शंस प्राइस. सो द ऑप्शन प्राइस फॉर्मूला इफ यू विल सी, देन दैट इंक्लूड्स वॉलेटिलिटी. तो यहाँ पर वी का मान रखेंगे, उसमें वॉलेटिलिटी आएगी. इस तरह से वो रिलेटेड होता है. ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया ना? यही चाहता था मैं. तो डेल्टा किससे अफेक्ट होगा? वॉलेटिलिटी से अफेक्ट होगा. ठीक है भाई, डेल्टा से क्या होगा? अगर डेल्टा 0.2 हुआ तो 0.2 से क्या मतलब है? 0.2 से सीधा सीधा मतलब ये है कि आपका जो ऑप्शन का प्राइस, अगर उसका 20% ले लीजिए, उतना बढ़ेगा. किसका? असेट प्राइस अगर 100 रुपये बढ़ा तो उसका 20% कितना होता है? 20. तो आपका प्रीमियम 20 बढ़ेगा. बट रियल मार्केट में ऐसा होता नहीं है. क्यों नहीं होता? वेल, वहाँ पर भी 2-3 फैक्टर्स प्ले में आ जाते हैं. मैंने अपना जो एक स्ट्रैटेजी शेयर की थी बहुत दिनों पहले, बॉक्स स्प्रेड करके, उसमें मतलब वो हर टाइम प्रॉफिट देती थी, वैसे वाली स्ट्रैटेजी थी. तो उसमें मैंने एक चीज़ शेयर की थी कि जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो 2 चीज़ों से बना रहता है. एक इंट्रिंसिक वैल्यू और सेकंड जो रहती है वो टाइम वैल्यू रहती है. तो अगर इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू है तो फिर हम यहाँ डेल्टा कहाँ से आ गया पिक्चर में भाई? अगेन टाइम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये तो मैंने एक बोल दिया x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड. इफ़ यू से
देन x इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो फिर x a प्लस बी पे डिपेंड है इस इक्वेशन के साथ। तो ऐसे मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑप्शन प्रीमियम इज इक्वल टू क्या होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। अभी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या रहती है, डिफरेंस बिटवीन द स्ट्राइक प्राइस एंड अंडरलाइंग एसेट प्राइस, ये इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाती है। और जो टाइम वैल्यू बोल रहा हूँ, टाइम वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए उसका एक अलग से फॉर्मूला होता है, जो अगेन इस पर डिपेंड होता है, किस पे, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी पे या वॉलेटिलिटी पे, यूँ कह लीजिए फॉर दैट मैटर। अभी वॉलेटिलिटी इसीलिए बोलते हैं कि थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी ठीक है, ये थोड़ा डिपेंडेंट हो गया, दो फॉर्मूले बता दिए मैंने। बट जब मैंने इसमें थोड़ा और डीप में जा रहा था ना, तो मुझे एक और चीज़ पता चली कि एक्सट्रिंसिक वैल्यू नाम की भी कोई चीज़ होती है। अरे यार, एक्सट्रिंसिक वैल्यू कैसे हो जाएगी? आप इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे, फिर उसमें टाइम वैल्यू ऐड कर देंगे तो आपका प्रीमियम आना चाहिए, बट उसके बाद भी कुछ ना कुछ मिस्टेक्स आती है या फिर थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं जनरली। वो मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे वाले जो हमारे प्लेलिस्ट में वीडियोस शेयर करेंगे उसमें वो यूज़ होगा। ठीक है, आपको एक्सट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू सब समझ में आ गई। आपको ये भी समझ में आ गया कि डेल्टा से क्या होगा, मतलब अगर 100 पॉइंट अंडरलाइंग एसेट मूव की तो 20 पॉइंट हमारा प्रीमियम मूव होगा। ओके, समझ में आ गया। ठीक है भाई, अभी समझ में आ गया तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स समझ लीजिए। कॉल ऑप्शंस के लिए जो डेल्टा होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है। इसको मल्टीप्लाई बाय 100 भी करके लिखते हैं कुछ लोग, बट 0 से 1 के बीच में होता है। पुट ऑप्शंस के लिए 0 से -1 के बीच में होता है। आप चाहे आउट ऑफ द मनी लीजिए, इन द मनी लीजिए, एट द मनी लीजिए, कौन सा भी ले लीजिए। कॉल के लिए पॉजिटिव होगा, पुट के लिए नेगेटिव होगा, और 0 से 1 और 0 से -1 के बीच में रहेगा। 0 से 1 और 0 से -1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में आपने कभी भी देखा रहेगा तो खाली प्रोबेबिलिटी रहती है। प्रोबेबिलिटी का मान हमेशा 0 से 1 के बीच में रहता है, इक्वल टू भी हो सकता है एनीवे। तो ये जो रहता है इसको प्रोबेबिलिटी की जैसा कंसिडर करेंगे तो आप इसको यूज़ कर पाएंगे। वेल, हाउ यू आर गोइंग टू यूज़ इट, लेट मी टेल यू। सी, आप मुझे एक चीज़ बताइए, आज निफ्टी मान लो 14,500 पे बंद हुआ। अभी मैं क्या करता हूँ, अप्रैल का कुछ एक्सपायरी खरीद या बाय कर रहा हूँ, तो मैं क्या 14,500 बाय कर सकता हूँ, खरीद सकता हूँ, सेल कर सकता हूँ, कॉल या पुट कुछ भी ले लीजिए। आप कहेंगे यार आप कैसी बात कर रहे हैं, आपने कुछ प्रेडिक्शन नहीं किया, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, आप कैसे खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं कुछ भी। मैं कहूँगा कि यार ठीक है ना, किधर तो जाएगा, मैं दोनों बाय कर लेता हूँ, कुछ तो प्रॉफिट मिलेगा। आप कहेंगे तो भी प्रीमियम बहुत घटेगा, तो आपका प्रॉफिट तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा, आप लॉस में भी रह सकते हैं अगर वहीं रह गया तो अभी आप बोलेंगे ये सेफ ऑप्शन नहीं है, करेक्ट। 14,500, अगर मैं आपको उसकी जगह बोलूँ 13,500 खरीद लूँ, तो आप खुशी खुशी बोलेंगे हाँ 13,500 खरीद लो ना, वो तो इन द मनी में रहने वाला था, आप पूरा प्रीमियम नहीं लूज़ करने वाले हो। कॉल ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ। क्यों बोला आपने, सोचिए। आपने इसलिए बोला क्योंकि आपको पता है 1000 पॉइंट अंदर है भाई, कुछ ना कुछ बहुत बुरा हुआ तब जाके 1000 पॉइंट निफ्टी नीचे जाएगा। तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वहाँ प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। प्रोबेबिलिटी हाई है मतलब डेल्टा हाई है, मतलब नियर टू 1 है। नियर टू जैसे 0.8 या 0.9 होगा, आगे नहीं बात समझ में। बट अगर यही चीज़ मैं एक्सपायरी के दिन बोलूँ कि एक्सपायरी के दिन 14,500 पर ट्रेड हो रहा है, तो मैं 14,500 को बाय करूँगा या सेल करूँगा, तो आप 14,500 को बाई करते हो। वैसे बाद एक्सपायर हो रहा है तो 200 पॉइंट ऊपर जा सकता है, 200 से 300 पॉइंट, तो आप क्या करो, इससे क्या कीजिए 300 पॉइंट नीचे लीजिए 14,200 और उसको बाई करके रख लीजिए। तो एटलीस्ट आपका प्रीमियम नहीं भी जाएगा, चाहे वो 300 पॉइंट नीचे भी चला गया तो भी। वेल, आपकी बात अच्छी है। उसमें आपने क्या किया, आपने यूज़ की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि आपको पता था भाई 300 पॉइंट मूव करेगा नहीं तो उधर का खरीद लेता हूँ, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी 1 के नज़दीक थी, मतलब उसका डेल्टा भी 1 के नज़दीक था। तो आपने डेल्टा ही यूज़ किया, जाने में किया हो चाहे अनजाने में किया हो। यहाँ तो आपने जान के किया, बट कहीं क्योंकि आपको थोड़ा दूर का और कुछ आपको नॉलेज आ गया था, दिमाग में एक कॉमन सेंस टाइप चल गया था। पर जब आप स्ट्रेटजी बनाते हैं ना, कुछ ज़्यादा ही ऑप्शंस को मिक्स कर देते, तो क्या दिमाग ही नहीं लग पाता। अब जब दिमाग नहीं लग पाता तो हम डेल्टा को कैसे ढूंढेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, ऑब्स्ट्रा में जो डेल्टा है उससे यूज़ कर लेंगे या कहीं और से डेल्टा ले आएंगे। अभी कुछ लोगों को आपने बोलते हुए भी सुना है कि डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी बनाओ। डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी कैसे बनेगी भाई, एक का वैल्यू 0 से -1 के बीच में है पुट का, और कॉल का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, डेल्टा न्यूट्रल कैसे होगा।
एक तरफ कुछ तो वैल्यू आएगी, चाहे पॉइंट आउट ऑफ द मनी लिया तो प्रोबेबिलिटी कम रहेगी, तो 0.2 या 0.1 रहेगा। अब इसको न्यूट्रल कैसे करोगे? न्यूट्रल मतलब उसको जीरो के आसपास लेके छोड़ना है। तो जीरो के आसपास कैसे लेंगे? अगर इसको आउट ऑफ द मनी लिया 300 पॉइंट ऊपर, अगर 0.2 आया तो उधर भी आप आउट ऑफ द मनी लीजिए पुट साइड में, तो -0.2 आ जाएगा। तो डेल्टा आपका न्यूट्रल हो गया। डेल्टा न्यूट्रल हो गया, इसका मतलब अंडरलाइंग एसेट प्राइस से आपका डेल्टा अफेक्ट नहीं होगा। बट यहाँ पर एक कैच है, मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको बता दिया डेल्टा न्यूट्रल क्यों बनाना है, ठीक है, समझ गए ना। कॉल आउट ऑफ द मनी में लिया है, अभी उसको डेल्टा न्यूट्रल बनाना मतलब एक साइड प्राइस चेंज होगा तो ये जो डेल्टा ये बढ़ेगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा, हमारा प्राइस भी बढ़ेगा। तो इसको क्या करते हैं, डेल्टा न्यूट्रल बना देते हैं, ठीक है। डेल्टा न्यूट्रल मतलब पुट में भी पोजीशन बना ली। ओके, डेल्टा न्यूट्रल बना दिया हमने। बनाया क्यों? क्योंकि हमको वॉलेटिलिटी यही बोले कि प्राइस चेंज से हमको इम्यूनिटी चाहिए थी। अभी इम्यूनिटी मिल गई ताकि हमारा लॉस P&L में लॉस नहीं पता है। ओके, इम्यूनिटी मिल गई, बट एक पंगा हो गया। सपोज आपने मॉर्निंग में 9:20 को ये डेल्टा देखा और आपने पोजीशंस बना ली, विक्स बढ़ गया, कुछ भी मार्केट का अच्छा खासा मूव हो गया। कब तक? 2 बजे तक आपका डेल्टा रहा ही नहीं। डेल्टा वो जो उस टाइम पे 0.2 था, अगर ऊपर मूव हो गया तो कॉल का डेल्टा बढ़ के 0.5 हो गया, मतलब प्रॉबिलिटी ज़्यादा हो गई। अब प्रॉबिलिटी ज़्यादा हो गई कि भैया वो इन द मनी में रहने की, कुल मिला के यही हो रही ना, प्रॉबिलिटी बढ़ रही, मतलब इन द मनी में रहने की प्रॉबिलिटी ज़्यादा हो रही है। अगर इन द मनी में रहने की प्रॉबिलिटी ज़्यादा हो गई तो क्या आप पोजीशन को होल्ड करना पसंद करेंगे क्या? डेफिनेटली नहीं करेंगे। या फिर क्या करेंगे, उसको फिर से न्यूट्रल बनाएंगे। तो जो न्यूट्रल बनाएंगे मतलब फिर से प्राइस का इफेक्ट कम करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए बोलते हैं डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी बनाओ, डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी बनाओ। तो अभी आप कभी भी स्ट्रेटजी बनाएं तो आप डेल्टा को न्यूट्रल कर सकते हैं ना। और डेल्टा को न्यूट्रल क्यों कर रहे हैं वो भी पता है आपको। और 1 के नज़दीक पहुंच गया, 100 के नज़दीक, कुछ लोग इसको 100 में भी कन्वर्ट करते हैं। 1 के नज़दीक पहुंच गया तो भाई वो 100% चांसेस है कोई इन द मनी है, तो फिर तो छोड़ो ना यार, उससे क्यों पंगा लेने का। इसलिए उसको स्क्वायर ऑफ कर दो। तो एडजस्टमेंट के टाइम पे हमको ये चीज़ काम आती है। अब एडजस्टमेंट कर रहे हैं, आपको पता है इसका डेल्टा 100 पहुंच चुका है, अभी उससे आपको क्या मिलने वाला है? आपको पता है इन द मनी में हो गया, आपने सेल कर रखा, अभी 1 ही होगी उसकी प्रोबेबिलिटी, तो निकालो ना, छोड़ो ना, अभी क्या मतलब ही नहीं आया। ज़बरदस्ती हम पढ़े हैं कि नहीं मार्केट फिर से नीचे जाएगा तो शायद हो सकता है करके। तो ये अपना फ्यूचर में अपने को डिसाइड करने में काम दे दिया। नॉलेज समझ में आया? तो यही है, इसको प्रोबेबिलिटी की तरह रखिए दिमाग में, ओके। और कितना चेंज होता है उसको अफेक्ट करेगा, और ये इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी से भी अफेक्ट होगा। वेल ये सब फॉर्मूलेज और ये सब मैं लास्ट वाली शीट में बता दूंगा। बट आज आपको डेल्टा समझ में आया कि नहीं है वो बताइए। डेल्टा समझ में आया, डेल्टा को यूज़ कैसे करना वो भी समझ में आया क्या? ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिमाग में घुसे। रिवीजन के लिए बोल देता हूँ। ग्रीक्स की बात करें तो ग्रीक्स क्या होता है, ग्रीक्स ऑफ जो गॉड ऑफ इजिप्शियन है ना, ग्रीक्स ऑफ गॉड मतलब उनका इन्फ्लुएंस था। तो ऐसे ही इन ग्रीक्स का इन्फ्लुएंस रहता है ऑप्शन के प्राइस पे। लेट इट बी कॉल, लेट इट बी पुट, और आउट ऑफ द मनी रहने दीजिए, इन द मनी रहने दीजिए, कुछ भी रहने दीजिए, उसका इन्फ्लुएंस है। तो उसके इन्फ्लुएंस को हम स्टडी कर रहे हैं और उसके हिसाब से हमारी स्ट्रेटजी को हम चेंज कर रहे हैं, स्ट्रेटजी बना रहे हैं, वो भी बोल सकते हैं। डेल्टा की बात करें, डेल्टा क्या करेगा? डेल्टा बताएगा कि अंडरलाइंग एसेट प्राइस कितनी मूव हुई, तो हमारा जो प्राइस है LTP बोल लीजिए, प्रीमियम बोल लीजिए, कॉल और पुट का, वो कैसे अफेक्ट होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम डेल्टा को न्यूट्रल कर सकते हैं ताकि उस अंडरलाइंग एसेट प्राइस में चेंज हो तो हमारा डेल्टा ज़्यादा चेंज नहीं करेगा। बट एक प्रॉब्लम क्या है, जो डेल्टा है वो पर्टिकुलर टाइम की वे पे बताता है, मतलब अगले टाइम पे फिर वो चेंज हो जाएगा। उसके लिए भी हमारे पास एक इलाज है, वो हम अगले वीडियोज़ में देखेंगे, ठीक है। इस प्लेलिस्ट में बने रहिए, मैं आपको उसका इलाज भी बता दूंगा। प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन खोजेंगे, ठीक है। अभी ये आपको पता चल गया। मैंने 1-2 चीज़ें और बताई थी। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? आपका जो स्ट्राइक प्राइस पे आपने पोजीशन बनाई वो माइनस या डिफरेंस लीजिए, क्योंकि वो पॉजिटिव होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, आउट ऑफ द मनी की इंट्रिंसिक वैल्यू होती नहीं है, ठीक है। कभी मत बोलना आउट ऑफ द मनी की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, पॉजिटिव होती है। और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? डिफरेंस होती है अंडरलाइंग एसेट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस, जहाँ पर आपने पोजीशन बनाई उसकी। आउट ऑफ द मनी की तो जीरो ही होगी इंट्रिंसिक वैल्यू, वहाँ पर खाली टाइम वैल्यू रह जाती है। मतलब टाइम डीके होता है ना, टाइम थीटा बोलते हैं हम। टाइम डीके मतलब टाइम वैल्यू का डीके होगा। टाइम वैल्यू कैसे होगा? टाइम वैल्यू का भी एक फॉर्मूला है, अभी उसके ऊपर मत जाइए, मैं आपको जब फॉर्मूला बताऊंगा ना उस टाइम पे आप बोलेंगे अरे यार इसको तो नहीं पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फॉर्मूले में जाइए, टाइम वैल्यू थोड़ा डिपेंड होता है वॉलेटिलिटी पे, वो समझ लीजिए थोड़ा। और टाइम वैल्यू की वैल्यू अगर आपका वॉलेटिलिटी ज़्यादा नहीं है तो टाइम की वैल्यू अपने आप जीरो होती जाएगी, आउट ऑफ द मनी है तो। इन द मनी में भी जब एक्सपायरी के दिन टाइम की वैल्यू जीरो होती है, खाली इंट्रिंसिक वैल्यू बचती है। बट इन दोनों फैक्टर के बावजूद भी ऑप्शन का प्राइस मैच नहीं कर पाता, आइडियल और थ्योरेटिकल बोल लीजिए और प्रैक्टिकल बोल लीजिए।
उन दोनों में क्यों नहीं मैच कर पाता, क्योंकि कहीं पर एक्सट्रिंसिक वैल्यू आ जाती है। एक्सट्रिंसिक वैल्यू कैसे आती है? वेल, बहुत सारे लोग पोजीशंस बना रहते तो डेफिनेटली उसका प्राइस हायर या लोअर जा सकता है। उतना ज़्यादा नहीं रहता कि आपको बिल्कुल बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा, थोड़ा सा प्रॉफिट मिलता है। और उसी को हमने एक्सप्लॉइट करके बॉक्स स्प्रेड स्ट्रेटजी डिस्कस की थी, और उसमें हमको पता चला था कि हम कैसे भी किसी भी हालत में ऊपर जान दो नीचे जान दो वहीं रहने दो तो भी हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। उसमें कुछ लिमिटेशन थी, वो मैं जानता हूँ, वहाँ रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा चाहिए रहेंगे और हमारे लिए प्रैक्टिकल नहीं है, जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, वो जो FIs DIs जिनको रियल टाइम डेटा मिलता है, बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, उनके लिए वो प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अभी नेक्स्ट जो अपकमिंग वीडियोज़ है इनको एक बार देखिए, मैं आपको दिमाग में ऐसा बिठाऊंगा कि आप कभी भूलेंगे ही नहीं। मतलब ये भी आपको समझ में आ गया ना, ग्रिक्स ऑफ गोल्ड से ग्रिक्स समझ में आ गया, डेल्टा समझ में आ गया, डेल्टा समझ में आ गया तो ख़त्म काम, वही बात है। अब डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी भी बना सकते हैं आप। ओके, अभी हम जैसे जैसे प्लेलिस्ट बनाता जाऊँगा मैं आगे की जो ग्रिक्स है उनको डिस्कस करूँगा। तो ग्रिक्स अभी हेल्प कर रहे हैं ना आपको पता चल गया ग्रिक्स को न्यूट्रल बनाए तो हमारी स्ट्रेटजी में फ़ायदा होता है अगर हम ऑप्शन सेलर्स है तो। ठीक है, आगे हम और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।